हाँ जी, सत श्री अकाल जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਗਿਆਨਮ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜੀਕੇ ਦਾ 95 ਨੰਬਰ ਦਾ ਮੌਕ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਿਗਵੈਦਿਕ ਨਾਮ ਨੇ ਨਦੀਆਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮਾਡਰਨ ਨਾਮ ਨੇ ਤੇ ਰਿਗਵੈਦਿਕ ਨਾਮ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਚ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਬਿਆਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਵਿਪਾਸਾ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੋ ਕਿਹਦੇ ਚ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਚ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਰਾਵੀ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਪੁਰੂਸ਼ਨੀ। ਹੁਣ ਰਾਵੀ B ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਤੀਜਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਊਗਾ ਜੀ, ਆਪਣਾ C ਆਪਸ਼ਨ। ਬਾਕੀ ਚਿਨਾਬ ਦਾ ਅਸੀਕਨੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇਲਮ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਤਾਸਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਆਇਆ ਜੀ, ਦ ਬੈਟਲ ਆਫ ਬਾਲਾਕੋਟ ਵਾਸ ਫੋਰਟ ਇਨ 1831 ਬਿਟਵੀਨ ਦ ਫੋਰਸਿਸ ਆਫ। 1831 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੈਟਲ ਆਫ ਬਾਲਾਕੋਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲੜੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ A ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਅਫਗਾਨ, B ਆਪਸ਼ਨ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਮਰਾਠੇ, C ਆਪਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਮਰਾਠਾਸ, ਚੌਥਾ ਹੈਗਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਸੈਯਦ ਅਹਿਮਦ ਬਰੇਲਵੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ 1839 ਤੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰੂਲ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਈਡ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਲਾਕੋਟ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਵੈਸਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਉਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਬਾਲਾਕੋਟ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਗਈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਰਾਠਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਦੇ ਆਪਾਂ ਲੜਾਈ ਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਰੈਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਇਆ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ D। ਸੈਯਦ ਅਹਿਮਦ ਬਰੇਲਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲਾਕੋਟ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਵਹਾਬੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਊਂਡਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈਗੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ 1857 ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਟਲ ਆਫ ਬਾਲਾਕੋਟ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਰੇਂਜ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਪਲੇਸਿਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਦੇਅਰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਫਰੋਮ ਸਾਊਥ ਟੂ ਨੌਰਥ। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਾਊਥ ਤੋਂ, ਮਤਲਬ ਦੱਖਣ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਮੋੜ, ਕਾਦੀਆਂ, ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ, ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕਾਂਜਲੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਪ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਦਰਨ ਮੋਸਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆਇਆ ਆਪਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ A ਮੋੜ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਕੇ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫੈਕਚੁਅਲ ਬੇਸਡ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਪ ਬੇਸਡ ਨੌਲੇਜ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ A ਓਨਲੀ। ਨੈਕਸਟ ਆਇਆ, ਕਾਲਮੋਤ ਵਾਸ ਕੈਪਚਰਡ ਬਾय ਦ ਫੋਰਸਿਸ ਲੈਡ ਬਾय ਡੈਸ਼ ਆਫਟਰ ਡਿਫੀਟਿੰਗ ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਆਫ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਇਨ ਦਾ ਬੈਟਲ ਆਫ। ਕਾਲਮੋਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੈਪਚਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ C, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਬੈਟਲ ਆਫ ਬਸੌਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਇਨ ਵਿਚ ਬੈਟਲ ਡਿਡ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈਲਪਡ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਹੂ ਸਕਸੀਡਡ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਇਨ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ ਜੀ, 1707 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। 1707 ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬੇਟੇ ਆਜ਼ਮ ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਬੈਟਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੈਟਲ ਆਫ ਜਜਾਊ ਹੋਊਗੀ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਾਲ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ 1707। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਆਇਆ, ਬਿਸਾਈਡ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਵਿਚ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਇਜ਼ ਫੇਮਸ ਫॉर ਹਿਜ਼ ਕਿੱਸਾ ਆਫ ਹੀਰ। ਮਤਲਬ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਈਟਰ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਹੀਰ ਦੇ ਉਹਦਾ ਕਿੱਸਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ C ਦਮੋਦਰ। ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਲਵੇ, ਅੰਡਰ ਹੂਜ਼ ਗੁਰੂਡਮ ਦ ਸਿੱਖ ਬਿਕੇਮਸ ਏ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਂਡ ਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ। ਮਤਲਬ ਸਿੱਖ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ਸਤਰੀਕਰਨ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਮਿਲੀਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ, ਆਪਣੇ 6ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਹੌਟ ਬਲੋਇੰਗ ਰਿਵਰ ਵਿੰਡਸ ਬਿਫੋਰ ਮੌਨਸੂਨ ਅਰਾਈਵ ਇਨ ਪੰਜਾਬ ਇਨ ਦਾ ਮੰਥ ਆਫ ਡੈਸ਼ ਆਰ ਕੋਲਡ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਿੰਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਗਰਮੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋ ਦੀ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਲੂ ਚੱਲਦੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਪੀਆ ਕਰੋ, ਹੈ ਨਾ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਢੱਕ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲੋ ਦੀ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਮਹੀਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੇਠ ਹਾੜ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਆਇਆ ਜੀ, ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਟਰੂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਟਰੂ ਹੈਗੀ ਹੈ। 6 districts of Punjab have common border with Pakistan running for 553 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਬਾਰਡਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ।
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਵਾਈਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ 553 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਹੀ ਸਹੀ ਆਊਗਾ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਰਡਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਚ ਸਟੇਟ ਹੈਜ਼ ਪਲਾਨ ਟੂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਏ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ। ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੋਰਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਆਪਣੇ ਜਿੱਥੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ ਜਾਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਪ੍ਰੋਨ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੇਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਬਣਾਈ ਜਾਊਗੀ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟ ਬਣਿਆ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ, of the 5 ਤਖਤ of Sikhism how many are directly associated with ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਤਖਤਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਤਖਤਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਤਖਤ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤਖਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਸੋਸੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਆਨਸਰ ਆਇਆ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਓਨਲੀ। Next है जी, at which place in Punjab the meeting of Northern Zone Council was recently held under the chairmanship of Shri Amit Shah, Union Dash Minister of India। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾਰਥ ਜ਼ੋਨਲ ਕਾਉਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਕਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਡਿਫੈਂਸ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇਗੇ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ। ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਚ ਸਟੇਟ ਪਬਲਿਸ਼ਡ ਇਟਸ ਬਜਟ ਇਨ ਪੰਜਾਬੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਫॉर द फर्स्ट टाइम। ਪੰਜਾਬੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਹੜੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਇਨ 1956, ਪੈਪਸੂ 1948, ਪੰਜਾਬ ਆਫਟਰ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਇਨ 1949। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਪੈਪਸੂ। ਪਟਿਆਲਾ ਐਂਡ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਬਜਟ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਵਿਚ ਸਿਟੀਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਸਿਫਤੀ ਦਾ ਘਰ। ਸਿਫਤੀ ਦਾ ਘਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਕੈਪੀਟਲ ਆਫ ਸਿੱਖਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋਲੀ ਪਲੇਸ ਆਫ ਸਿੱਖਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਨਗਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਕਿਹਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਨੈਕਸਟ ਆਇਆ, ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੈਜ਼ ਦ ਡਿਸਟਿੰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਕੋਰੋਨੇਟਿੰਗ ਦ ਸਕਸੈਸਰਸ ਆਫ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਅਪ ਟੂ 6th ਗੁਰੂ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਇਹ ਜਿਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੱਕ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੱਦੀ ਸੌਂਪੀ ਸੀਗੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜੋਤੀ ਜੋ ਸਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ 6ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਸੱਗੀ ਫੁੱਲ ਇਜ਼ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ, ਇਟ ਇਜ਼ ਏ। ਸੱਗੀ ਫੁੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਲਚਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਗਹਿਣਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਡਾਂਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੱਗੀ ਫੁੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਗਹਿਣੇ ਦੀ ਟਾਈਪ ਹੈਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਇਜ਼ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਗਿਆਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜੀਕੇ ਦਾ 95th ਮੌਕ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ, ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਸਨਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਨਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਜਾਂ ਸਨਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਿਹਾ। ਇੰਡਸਟਰੀ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਕਲੀਨਿਕ ਜਾਂ ਨਨ ਆਫ ਦਿਸ। ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਆਇਆ, ਬਿਫੋਰ ਦ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 42nd ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ 1976 ਦ ਪ੍ਰੈਮਬਲ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਇੰਡੀਆ ਟੂ ਬੀ ਏ। ਮਤਲਬ ਕਿ 42ਵੀਂ ਸ਼ੋਧ 1976 ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਿਨੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ, ਸੈਕੂਲਰ ਤੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰਿਟੀ ਵਰਡ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਮਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜੇ ਨੇ। ਇਹ ਵਰਡ ਐਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੈਮਬਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਸੈਕੂਲਰ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ, ਰਿਪਬਲਿਕ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਸੈਕੂਲਰ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਤਾਂ 42ਵੀਂ ਵਰਡ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਸੈਕੂਲਰ ਆ ਗਿਆ, ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ, ਸੈਕੂਲਰ ਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਹੋਇਆ ਜੀ ਆਪਣਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਊਗਾ ਸੋਵਰਨ, ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ, ਸੈਕੂਲਰ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ, ਰਿਪਬਲਿਕ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਗੇ ਮੇਜਰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਰਡ ਆਉਂਦੇ ਨੇਗੇ ਪ੍ਰੈਮਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਤੇ ਸੈਕੂਲਰ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ 42ਵੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਨੇਗੇ। ਤਾਂ ਸੋਵਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧਾ ਕੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ, ਫਿਰ ਆਇਆ ਰਿਪਬਲਿਕ। ਨੈਕਸਟ, which of the following liberties is sought to be secured to the citizens of India in the preamble। ਪ੍ਰੈਮਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਸੋਵਰਨ, ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ, ਸੈਕੂਲਰ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ, ਰਿਪਬਲਿਕ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਨੀਚੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਲਿਬਰਟੀ, ਰਿਪਬਲਿਕ ਲਿਬਰਟੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਫ੍ਰੈਟਰਨਿਟੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਵਰਡ ਹੋਰ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣਾ ਜਸਟਿਸ। ਜਸਟਿਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣਾ ਸੋਸ਼ਲ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ।
ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਲਿਬਰਟੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲਿਬਰਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ, ਲਿਬਰਟੀ ਆਫ ਥੋਟ, ਪੈਸ਼ਨ, ਬਿਲੀਫ, ਫੇਥ ਔਰ ਵਰਸ਼ਿਪ। ਇਹ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਜੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਕਿਸ ਡੇਟ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਵਿਚ ਸਟੇਟ ਹੈਜ਼ ਅਨਾਉਂਸਡ ਟੂ ਸੈਟ ਅਪ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਨੇ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੈਟਅਪ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਗੁਜਰਾਤ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਯੂਪੀ, ਉੜੀਸਾ। ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼। ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਡੀਆ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਜੰਪਡ ਟੂ ਇਟਸ ਹਾਈਐਸਟ ਸਪੋਰਟ ਆਫ ਵਿਚ ਰੈਂਕ ਇਨ ਦ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਕਸਿੰਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਰਲਡ ਰੈਂਕਿੰਗ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਕਸਿੰਗ ਰੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿੰਨਵੇਂ ਹਾਈਐਸਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਫਸਟ, ਸੈਕਿੰਡ, ਥਰਡ ਜਾਂ ਫਿਫਥ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ, ਥਰਡ। ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, Article 2A was introduced in the Constitution of the India of the conclusion of which of the following territories in India। ਹੁਣ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 2A ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕਦੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ? ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਆਰਟੀਕਲ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸੇ ਫੋਰਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟੈਰੀਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪਾਰਟ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਆਫ ਅਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਸੀ, ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਆ, ਗੋਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਸਟੇਟ ਹੈ ਬਟ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਸੀ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਕਿਮ ਸਟੇਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਿੱਕਿਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 35th ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪਾਰਟ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ ਤੇ 36th ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਕਿਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਨ ਦਾ ਕਾਉਂਸਿਲ ਕੈਨ ਨਾਟ ਐਕਸੀਡ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ 15% ਆਫ ਦਾ ਟੋਟਲ ਸਟਰੈਂਥ ਆਫ ਦਾ ਹਾਊਸ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਬੀਇੰਗ ਏ ਨॉन ਮੈਂਬਰ ਹੂ ਅਮੰਗ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਕੈਨ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਇਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਸ ਆਫ ਈਦਰ ਹਾਊਸ ਆਫ ਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਦਾਊਟ ਹੈਵਿੰਗ ਰਾਈਟ ਟੂ ਵੋਟ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੋਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਕੈਗ ਜਾਂ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਐਸਟ ਲਾਅ ਆਫਿਸਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਪਰਸਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ 76। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ, who preside over the ਲੋਕ ਸਭਾ when speaker and ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ of the house are absent। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਐਬਸੈਂਟ ਰਹਿਣਗੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੌਣ ਸੰਭਾਲੂਗਾ? ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਅਫੇਅਰਸ, ਐਨੀ ਆਫ ਦਾ ਪੈਨਲ ਮੈਂਬਰਸ ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਬਾਈ ਸਪੀਕਰ, ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੈਨਲ ਮੈਂਬਰਸ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਪੀਕਰ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਹਾਊਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੂ। ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਕੋਰਮ ਟੂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਟ ਅ ਮੀਟਿੰਗ ਆਫ ਈਦਰ ਹਾਊਸ ਆਫ ਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ। ਕੋਰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਕੋਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਕੋਰਮ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈਗੀ ਆ 1/10 ਆਫ ਦਾ ਟੋਟਲ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ। ਮਤਲਬ ਕਿ 545 ਮੈਂਬਰ ਨੇਗੇ ਟੋਟਲ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 1/10 ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ 54.5 ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਧਾ ਹੋਊਗਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 55 ਬੰਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣਗੇ ਸਦਨ ਦਾ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਇਆ 1/10 ਆਫ ਦਾ ਟੋਟਲ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਆਫ ਦਾ ਹਾਊਸ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ। Next I have, what would happen if a person get elected both as a member of parliament and member of legislative assembly of a state but does not resign from either seat within the prescribed period। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਐਮਪੀ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਮਐਲਏ ਵੀ ਬਣ ਗਏ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਮਪੀ ਵੀ ਹੈਗਾ ਐਮਐਲਏ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ
ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸੀਟ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਉੱਪਰਲਾ ਸਦਨ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਪਰਲਾ ਸਦਨ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਐਮਪੀ ਦਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰਲੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਉਹਦੀ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਪਰਸਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਐਮਪੀ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਹੈ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਉਹ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬਣਿਆ ਰਹੂਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਕੰਸੀਡਰ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਟੈਕਸ ਪਾਲਿਸੀ ਆਫ ਅ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਫੈਕਟ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਸ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਲੈਵਲ ਆਫ ਸੇਵਿੰਗ ਐਂਡ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਇਨ ਦ ਇਕਨੋਮੀ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਐਟਰੈਕਟਿਵਨੈਸ ਆਫ ਫੋਰਨ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸ ਲਗਾਊਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਿੰਗਸ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਊਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਨ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਥਰੂ ਪੈਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੋਪੂਲਰ ਰੈਬੇਲੀਅਨ ਇਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਵਿਦ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੇਟਸ। ਪੋਪੂਲਰ ਰੈਬੇਲੀਅਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਨੌਨ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲਾ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਮਿਊਨਲ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਪਰੈਸ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਕੇਰਲਾ। ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਫੋਲੋਡ ਬਾਈ ਦਾ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਆਫ ਬੰਗਾਲ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 1905 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਮਾਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਅੰਦੋਲਨ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਮਰ ਸੋਨਾਰ ਬਾਂਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਥਮ ਬਣਿਆ। ਰੋਲੈਟ ਐਕਟ ਵਾਸ ਪਾਸਡ ਇਨ ਦਾ ਈਅਰ। ਰੋਲੈਟ ਐਕਟ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 1919 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਨੋ ਵਕੀਲ ਨੋ ਦਲੀਲ ਤੇ ਨੋ ਅਪੀਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਵਿਕਰਮਾਦਿੱਤਿਆ ਵੈਦਿਕ ਕਲੌਕ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਮੈਂਸ਼ਨਡ ਇਨ ਦਾ ਨਿਊਜ਼ ਇਜ਼ ਲੋਕੇਟਡ ਇਨ ਵਿਚ ਸਿਟੀ। ਵਿਕਰਮਾਦਿੱਤਿਆ ਕਲੌਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਥੇ ਲੋਕੇਟਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ। ਨੈਕਸਟ ਆਇਆ ਗਲੋਬਲ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਊਟਲੁੱਕ 2024 ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਸੀਨ ਇਨ ਦਾ ਨਿਊਜ਼ ਇਜ਼ ਪਬਲਿਸ਼ਡ ਬਾय ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਯੂਨੈਸਕੋ ਜਾਂ IMF। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਨੈਕਸਟ ਆਇਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬ੍ਰਾਇਨ ਮਲਰੋਨੀ ਹੂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਪਾਸਡ ਅਵੇ ਵਾਸ ਦਾ ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਵਿਚ ਕੰਟਰੀ। ਇਹ ਪਰਸਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਕੈਨੇਡਾ, ਚਿਲੀ ਜਾਂ ਫਰਾਂਸ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਕੈਨੇਡਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਸ ਹੈਵ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਅਚੀਵਡ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸਟੀਜੀਅਸ ਈਟ ਰਾਈਟ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਕਿੰਨੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇ, 157, 54, 152 ਜਾਂ 150। ਤਾਂ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਆਪਣਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ 150। ਦਸੰਬਰ 1 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਵਰਲਡ ਏਡਜ਼ ਡੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਏਡਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਵਰਡ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਡਜ਼ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਪਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਕਵਾਇਰਡ ਇਮਿਊਨੋਡਿਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਸਿੰਡਰੋਮ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਸਿੰਡਰੋਮ। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ। ਨੈਕਸਟ ਆਇਆ ਜੀ EWS ਕੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਕਨੋਮਿਕ ਵੀਕਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਟਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ, 92, 98, 103 ਜਾਂ 112। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 112ਵੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਤਾਂ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ, ਤੇ 100 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ 101 ਨਾਲ ਤਾਂ GST ਬਣਾਤਾ, 102 ਦੇ ਨਾਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫॉर ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸਿਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਤੇ 123 ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ। ਨੈਕਸਟ ਆਇਆ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਸਟਾਰਟਡ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਵੋਟ ਦੇਸ਼ ਕੇ लिए कैंपेन। ਇਹ ਵਿਚ ਮਿਨਿਸਟਰੀ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੈਂਪੇਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹੜੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਹੋਮ ਅਫੇਅਰ, ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਡਿਫੈਂਸ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ ਆਇਆ ਜੀ ਕੁਲਾਸ਼ੇਖਰਾ-ਪਟਿਨਮ स्पेसक्राफ्ट रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ लोकेटेड इन विच स्टेट। मतलब कि कुलाशेखरा-पट्टिनम स्पेस पोर्ट है ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੇਟਡ ਹੈ, ਕਰਨਾਟਕ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੁਜਰਾਤ। ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਤਮਿਲਨਾਡੂ। ਨੈਕਸਟ ਆਇਆ ਹੌਰਨਬਿਲ ਫੈਸਟੀਵਲ ਇਜ਼ ਬਿਗੇਸਟ ਕਲਚਰਲ ਐਕਸਟਰਾਵੈਂਜਾ ਆਫ ਵਿਚ ਸਟੇਟ। ਹੌਰਨਬਿਲ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੋਊਗਾ। ਬੰਤਾਰਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਵਿਚ ਵਾਸ ਸੀਨ ਇਨ ਦਾ ਨਿਊਜ਼ ਇਜ਼ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਵਿਦ ਵਿਚ ਆਫ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ। ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਐਨੀਮਲਸ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਬੰਤਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਐਨੀਮਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਰੀਸੈਂਟਲੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਵੀ ਰੀਲਸ ਵਾਇਰਲ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਇਜ਼ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ।
हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि आपको मालूम है कि हर हफ्ते आपके लिए कुछ ना कुछ नया लाया जाता है, तो मैं आशीष आज आपका फिर से स्वागत करता हूं। मॉक 95 में कंप्यूटर के इस सेक्शन में आप लोग मेरे साथ सीखेंगे कि क्या क्या चीज़ें आपके पास हैं और कैसे इनको सॉल्व किया जाएगा। सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है। स्मार्टफोन कंबाइन डैश रेडियो टेक्नोलॉजी with specifically designed processor as smartphone have evolved and developer have found new indigenous way to use hardware and wireless connectivity to make information instantly available to the user। तो वो आपके पास अगर मैं बात करता हूँ एनालॉग है, जीएसएम है, सेलुलर है या फिर डिजिटल है, तो आज की डेट में अगर मैं बात करता हूँ तो हम लोग सेलुलर टेक्नोलॉजी का यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। तो आंसर इज सेलुलर आपका आंसर बनेगा। नेक्स्ट अगर बात करता हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोर डेटा टेम्परेली एंड पास इट ऑन द डायरेक्टेड बाय अ कंट्रोल यूनिट। मतलब ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि पहले क्या करता है, स्टोर करता है टेम्परेरी टाइम के लिए, फिर पास कर देता है डायरेक्टेड बाय द कंट्रोल यूनिट को। तो वो होते हैं रजिस्टर। रजिस्टर्स मेमोरी अपने आप में होते हैं जो कि ये काम को आपके पास करती है। तो आंसर इज रजिस्टर। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, बट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग एम एस एक्सेल फॉर्मूला। अगर मैं बात करता हूँ राउंड का फॉर्मूला है, तो आपके पास यहाँ पे आपके पास लिखा है 3.4565 एंड आपके पास कोमा 3 और ब्रैकेट क्लोज। एक्चुअल में राउंड का मतलब क्या होता है कि हमें डेसिमल प्लेस के बाद कितनी वैल्यू चाहिए वो हम लोग यहाँ पे बताते हैं। अगर मैं बात करता हूँ डेसिमल प्लेस के बाद मुझे कितनी वैल्यू चाहिए, यहाँ पे लिखा है 3, तो यहाँ पे लिखा है 3.456 तो 5। तो ये बोल रहा है इस 3 का जो मीनिंग है वो ये है कि इसके बाद मुझे 3 वैल्यू चाहिए। तो ये क्या करेगा, 3.457 एक वैल्यू आगे और यहाँ पे उठा लेगा और आपका आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पे बन जाएगा। अगर यहाँ 2 लिखा होता तो 6 उठा लेता, ठीक है ना, इस तरीके से ये आपका आंसर जो है बनेगा। चलिए नेक्स्ट की अगर बात करता हूं, अगला क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द ओड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। इनमें से कौन सा ओड वन आउट है, OMR, OCR, MICR। इसका आंसर है BDU, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। आंसर क्या है, डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू अप्लाई एन एग्जिस्टिंग फॉर्मेटिंग एट मल्टीपल प्लेस इन द MS वर्ड डॉक्यूमेंट। वो कौन सी चीज है, तो आपके पास स्ट्राइक थ्रू, फॉर्मेट पेंटर, शेडिंग या फिर चेंज केस। तो दैट इज फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर जो है हर कहीं आपके पास रहेगा, ठीक है ना, आंसर इज फॉर्मेट पेंटर। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड ऑफ द इंसर्ट मेन्यू इन MS PowerPoint 2016 कैन बी यूज्ड to quickly add a picture of any window that is open on your desktop to your presentation। तो वो मतलब आप किसी भी चीज़ को वहाँ से ऐड ऑन कर सकते हो। पिक्चर है, स्क्रीनशॉट है, ऑनलाइन पिक्चर या फिर फोटो एल्बम। तो इसका आंसर आएगा बी ऑप्शन, स्क्रीनशॉट से आप लोग वहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं किसी भी चीज़ का स्क्रीनशॉट लेके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, ये अगला क्वेश्चन क्या है। आज नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, द टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम MS DOS। MS DOS मतलब DOS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो ये पूछा कि कौन से टाइप का, मल्टीटास्किंग है, ग्राफिकल यूजर है, कमांड लाइन इंटरफेस है, फिर मेन्यू ड्रिवन। तो मेन्यू ड्रिवन तो होता नहीं है आपके पास, ग्राफिकल भी नहीं होगा, मल्टीटास्किंग भी नहीं होगा। ग्राफिकल का मतलब होता है जहां माउस होता है। MS DOS में माउस तो यूज ही नहीं करते, तो ये तो कमांड लाइन होता है या फिर इसका आंसर आएगा सी ऑप्शन, कमांड लाइन इंटरफेस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द फर्स्ट कंप्यूटर वायरस। जो पहला कंप्यूटर वायरस था वो कौन था, आई लव यू, ब्लास्टर, सेसर या फिर क्रीपर। तो क्रीपर इज योर फर्स्ट कंप्यूटर वायरस। ठीक है, ये कहाँ बना था, पाकिस्तान में बना था सबसे पहले। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास, द इन द ईमेल फॉलोइंग टर्म डिस्क्राइब द कंटेंट ऑफ द मैसेज। जब भी आप किसी को ईमेल लिखते हैं तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट, जिसमें कि सारी चीज़ को डिस्क्राइब कर दिया जाता है। तो आंसर क्या आएगा, सब्जेक्ट में आप लोग क्या करते हैं, ईमेल के कंटेंट को यहाँ पे डालते हैं। तो आंसर इज ए ऑप्शन। ठीक है जी, तो होपफुली यहाँ तक सभी को सारी की सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हुई होंगी। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू गाइस। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि आपको मालूम है कि हर हफ्ते आपके लिए मॉक लाया जाता है, तो मैं आशीष आज का फिर से स्वागत करता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं मॉक में। ठीक है, तो ये रहा सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आपके पास कुछ एक इन्फॉर्मेशन गिवन है। चलिए चेक करते हैं, सबसे पहले क्या लिखा है, स्टडी द गिवन इन्फॉर्मेशन एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। सबसे पहले लिखा है, देयर आर 4 पीपल सिटिंग एट द रो, one each from India, Japan, USA and Germany, but not in that order। तो
तो आपके पास एक बात बता दी कि 4 कंट्रीज हैं, इंडिया आ गया, जापान आ गया, यूएसए आ गया, जर्मनी आ गया, पर इस ऑर्डर में नहीं बैठे हैं। दे वेयर कैप्स ऑफ डिफरेंट कलर, ग्रीन, येलो, रेड एंड व्हाइट। ग्रीन, येलो, रेड एंड व्हाइट है, विथ नॉट नेसेसरी इनटू दैट ऑर्डर। देन आगे क्या लिखा है, द वन इज वेयरिंग कुर्ता एंड वन इज वेयरिंग टी शर्ट, और उनमें से एक ने कुर्ता पहना है और दूसरे ने टी शर्ट पहनी हुई है। द इंडियन इज वेयरिंग ग्रीन कैप एंड जैकेट। अब देखो इसने एक क्लू दे दिया, इंडियन जो है उसने क्या कहा कि जो इंडियन है ना उसने क्या पहना हुआ है, ग्रीन कैप। कैप नीचे लिख दो, ग्रीन कैप, और जैकेट ऊपर लिख लो। ठीक है, ये पक्की बात है, आप लोगों ने यहाँ पे ऐसे लिख लिया। देन आगे आपके पास है, द अमेरिकन इज नॉट सिटेड एट द आइदर एंड। ये अमेरिकन जो है किसी कोने पे नहीं बैठा। अगर 4 बंदे थे तो ऐसे ले लो, 1 2 3 और 4, नीचे बना लो 1 2 3 और 4। अब एक चीज को समझो क्लास, कि अमेरिकन इस कोने पे नहीं है, इस कोने पे नहीं है, या तो अमेरिकन इस कोने पे होगा या फिर अमेरिकन इस कोने पे होगा। ठीक है, ये पक्की बात है ना, उसने कहा कि अमेरिकन जो है कोने पे नहीं है तो सेंटर पे ही होगा, पक्की बात है। ठीक है, देन आगे क्या है, द पर्सन विद कुर्ता एंड टी शर्ट आर सिटेड नेक्स्ट टू ईच अदर। अब क्या है, कुर्ता और टी शर्ट जो है एक दूसरे के आगे साथ साथ हैं। ठीक है, नेक्स्ट टू ईच अदर। द पर्सन विद कुर्ता वेयर रेड कैप। द पर्सन विद कुर्ता, जिसने कुर्ता पहना है उसने क्या है, रेड कैप पहनी है। द पर्सन विद कुर्ता वेयर रेड कैप एंड सिट नेक्स्ट विद टू जापानीज, और ये जापान के आगे बैठा है। ठीक है, देन आगे आपके पास है, द जापानीज वेयर शर्ट। जापानीज ने क्या पहनी है, शर्ट। ठीक है, द जापानीज वेयर शर्ट एंड इज नॉट ऑन द आइदर एंड। तो जापानीज जो है कोने पे नहीं है, तो जापानीज या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा। लो जी, जापान यहाँ पे कर लो, तो इसका शर्ट ऊपर आ जाएगी। ठीक है, तो अगर यहाँ पे कुर्ता आ जाएगा और यहाँ पे रेड आ जाएगा। ठीक है, और इस केस में जापान यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और जापान आ गया तो शर्ट भी आएगा। और इसका अब यहाँ पे देखेंगे बेटा, जापानीज जैसे ही आया, जापानीज के आगे क्या आना था आपके पास, खाली जगह आनी थी, और यहाँ पे क्या आना था, कुर्ता। ठीक है ना, जापानीज के साथ क्या आना था, कुर्ता यहाँ पे आना था। ये चीज आपको यहाँ पे देखनी पड़ेगी। जापानीज के साथ क्या आएगा, यूएसए, तो जापानीज के साथ अगली जगह, तो यहाँ पे ये खाली होगी, यहाँ पे जापानीज के साथ अमेरिकन आ गया, और ऊपर कुर्ता, और इसका कलर क्या आ गया, रेड। यहाँ पे अभी तक तो दोनों के दोनों केस से ही चल रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत आपके पास नहीं आई है। ठीक है, अब आपके पास अगर मैं इस इंफॉर्मेशन की बात करता हूं तो इसका तो यूज हो चुका है, तो यहां से मिटा लेते हैं। ठीक है, चलो, अगर यहाँ पे हो गया है, आगे बची है जैकेट, इंडियन एंड ग्रीन। अब एक ऐसी जगह चाहिए जहां पे ये दोनों आ सकती हैं, बट आपके पास एक कंडीशन, पहले आखिरी पढ़ लो क्या लिखा, द मैन विद वाइट कैप। उसने क्या कहा है, द मैन विद वाइट कैप वेयर टी शर्ट। जिसने वाइट कैप पहनी है वो क्या है आपके पास, उसने पहना है टी शर्ट। एंड इज सिटेड वन ऑफ द एंड, तो किसी कोने पे बैठा है, तो वाइट जो है आपके पास, तो यहां पे आ जाएगा आपके पास वाइट, और आपके पास टी शर्ट। ठीक है, अभी आपके पास अगर मैं बात करता हूं तो वाइट और टी शर्ट। अब अगर मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे फिट कर देता हूं तो ये कंडीशन यहाँ पे फुलफिल नहीं हो रही। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं तो थोड़ा ध्यान दो यहाँ पे, फिर क्या होने वाला है। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है कि आपके पास क्या होएगा। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूं फर्स्ट नंबर पे, ये भी तो बिठाना था अभी आपके पास इंडियन, ये भी तो बिठाना था इंडियन। इंडियन आ गया, इसके साथ कलर कौन सा आएगा, ग्रीन, और इसका कुर्ता। ठीक है, और वाइट और टी शर्ट, तो वाइट यहां पे आ जाता, वाइट नीचे लिखता हूं फिर।
व्हाइट और टी शर्ट आ गया आपके पास यहाँ पे, ठीक है ना, ये पक्की बात है आपके पास, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो अब आगे आप लोग देख सकते हैं और क्या बचा है। हाँ हाँ, अब मैं आखिरी केस की बात करता हूँ, आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, आखिरी में भी आपको ये बिठाना पड़ेगा, तो आखिरी में भी आपके पास क्या था, यही, या तो अब आपके पास देखो इंडियन और ये आना था। एक चीज और भी है, यहाँ पे इसने लिखा था कि वन ऑफ द एंड, तो ये केस पता क्यों गलत हो गया, क्योंकि उसने ये लिखा कि किसी कोने पे बैठे हैं, तो कोना जो है आपके पास ये फुलफिल नहीं कर रहा। तो अब आपके पास कोने की बात ये फुलफिल नहीं कर रहा था ना, व्हाइट और टी शर्ट जो थे वो किसी एंड पे बैठे थे, एंड पे तो आई नहीं, यहाँ पे तो ये बीच में आ गया, तो ये गलत हो गया। अब एक कंडीशन ये थी कि कुर्ता एंड टी शर्ट आर नेक्स्ट टू ईच अदर, कुर्ता और टी शर्ट आर नेक्स्ट टू ईच अदर, तो अगर मैं यहाँ ले लूँ व्हाइट और यहाँ ले लूँ आपके पास टी शर्ट, तो ये कंडीशन फुलफिल कोने वाली भी कर गया और इंडियन यहाँ पे आ गया, ठीक है, ग्रीन कलर यहाँ पे आ गया और आपके पास जैकेट यहाँ पे आ गया। अब कलर बचा है येलो और आपके पास जगह जो है बची है वो बची है जर्मनी, तो ये तो ऊपर का गलत हो गया, अपने आप में नीचे का क्या आ गया, सही आ गया। दैट इज द वे टू सॉल्व द क्वेश्चन। अब सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन में है हु वेयर टी शर्ट, टी शर्ट किसने पहनी हुई है। अगर टी शर्ट की हम बात करते हैं तो टी शर्ट जो है आपके पास पहनी हुई है जर्मनी और वाइट, या तो जर्मनी होगा या तो वाइट होगा, जर्मन मतलब डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं हु वेयर कुर्ता, कुर्ता किसने पहना हुआ है, एक बार चेक कर लेते हैं। अगर कुर्ता की बात करते हैं तो कुर्ता अमेरिकन या फिर रेड, ठीक है, हु वेयर कुर्ता अमेरिकन या फिर रेड, तो कुर्ता किसने पहना है, अमेरिकन ने। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। बट इज द कलर ऑफ द कैप बोर्न बाय द जापानीज, जापानीज का जो आपके पास कैप का कलर था वो क्या था, जापानीज का जो वो था येलो, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास हु प्रीसीड द मैन वेयरिंग द टी शर्ट, टी शर्ट से पहले, ठीक है। अगर टी शर्ट से पहले देखते हैं अमेरिकन, कुर्ता एंड रेड, अमेरिकन, ठीक है। नेक्स्ट है हु प्रीसीड द मैन वेयरिंग द जैकेट, जैकेट से पहले कौन था, अगर जैकेट से पहले की बात करते हैं तो जैकेट से पहले कोई भी नहीं है, जैकेट से पहले कोई भी नहीं है आपके पास, तो आंसर इज नन, आंसर इज नन, डी ऑप्शन आपके पास आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कंप्लीट द पैटर्न, आपको ये बताना है कि कौन सी फिगर यहाँ पे फिट होगी। तो अगर हम बात यहाँ पे करते हैं तो फिट की अगर मैं बात यहाँ पे करता हूँ तो सबसे पहले फिट की अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ से क्या होगा, ये सेट बनेगा पूरा का पूरा यूं करके, ठीक है। फिर इस तरीके से यहाँ पे जैसे ये बना है उसी तरीके से यहाँ पे यूं करके, ठीक है, इस तरीके से बनेगा और यहाँ पे इस तरीके से बनेगा। देखिए करके चेक करेंगे और आपके पास यहाँ पे देखेंगे कि यूं और यूं, तो ये ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल फिट बैठ रही है, तो ए ही आंसर है इसका, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आपके अगला क्वेश्चन है इन अ रो ऑफ गर्ल कमला इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट, देन आगे क्या है एंड बिमला इज 12th फ्रॉम द राइट। When they exchange their places, Kamala is 16th from the left. Kamala is 16th from the left. Then आगे आपके पास क्या है, what is the new position of Bimla from the right end? तो मतलब अगर कमला ने यहाँ से यहाँ जाने के लिए कुछ सर्टेन नंबर पार किए हैं, 10 से 16 के ऊपर 6 पार किए हैं, तो बिमला जब यहाँ से आएगी तो यहाँ से लेके वो भी कितने पार करेगी, 6 ही पार करेगी। तो ऑलरेडी 6 और 6 यहाँ पे, 6 यहाँ पे, 12 पे ऑलरेडी है 6 और आ गया है कि 18 पे आ जाएगी। आंसर इज ए ऑप्शन 18 फ्रॉम द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास इन अ सर्टेन कोड नोड TA
OS, इसका मीनिंग क्या है? शी इज ब्यूटीफुल। देन आगे है आपके पास TAKEJO मीन्स गुड एंड ब्यूटीफुल। आगे है KEOSNA मीन्स ही इज गुड। ठीक है, अब निकालना किसका था? शी, SHE, शी का कोड निकालना था। तो ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल यहाँ से निकल जाएगा, ब्यूटीफुल का कोड इन दोनों लाइनों में आएगा TA। अगला है इज का कोड हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं, इज का कोड आपके पास क्या आ गया? OS। शी का कोड आएगा नोड एंड नोडिंग। नोड तो यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, तो आंसर इज नन ऑफ दिस, आंसर इज नन ऑफ दिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इफ द फर्स्ट एंड द सेकंड, पहले नंबर लिख लेते हैं। इफ द फर्स्ट एंड द सेकंड डिजिट ऑफ द सीक्वेंस आर इंटरचेंज एंड आल्सो थर्ड एंड फोर्थ और फिफ्थ एंड सिक्स्थ, तो नंबर लिख लो 5 9 8 1 3 2 7 4 3 8। इंटरचेंज कर दिया 9 5 1 8 2 3 4 7 8 3। देन आगे पूछा क्या है? विच डिजिट वुड बी सेवंथ टू काउंटिंग योर लेफ्ट। अगर योर लेफ्ट है ना सेवंथ, तो इसका मतलब होता है राइट साइड से, राइट साइड से सेवंथ पे 1 2 3 4 5 6 7। आंसर इज आपके पास 8, आंसर इज 8। जहाँ भी योर्स लेफ्ट आ जाए तो उसका मतलब राइट होगा, जहाँ योर्स राइट आ जाए उसका मीनिंग क्या होगा? लेफ्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप, अगला क्या है? हाउ मेनी स्क्वायर एंड ट्रायंगल आर देयर। अगर स्क्वायर की बात करते हैं तो आपके पास सबसे पहले 1 2 3 4 5, फिर आपके पास 6 और ये एक 7 हैं, तो ये तो पहले ही कैंसिल हो गए, इन दोनों में से बनेगा। ट्रायंगल की अगर बात करते हैं तो 1 2 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 7। अब इसका मतलब क्या था? देखो 1 2 3 4, 4 है तो डबल कर लो 8 9 10, फिर ये 11 पूरा बनेगा, फिर ये 12 बनेगा, फिर ये 13 बनेगा, फिर ये 14 बनेगा, फिर ये 15 बनेगा। ठीक है, 15 के बाद 16 बनेगा, 17 बनेगा। 17 के बाद अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, 17 के बाद अगर आप यहाँ पे चेक करते हैं तो यहाँ पे 17 में के बाद आपके पास ये आ गया, फिर यहाँ पे एक 17 हो गए ना, 8, अच्छा ये एक ये भी था 9 10। ठीक है, हाँ 1 2 3 3 यहाँ पे बन गए थे और 8 यहाँ बन गए थे 11, फिर आपके पास ये 12 13 14 15। ठीक है ना, 15 के बाद ये 16 17, फिर ये 18, फिर ये 19, हाँ बड़े भी था तो 19 मतलब 21 बन जाएंगे। फिर बात खत्म, फिर तो आंसर इज ए ऑप्शन। 17 से ऊपर निकल गए तो फिर चेक ना करो, फिर तो बात ही खत्म करो, 21। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, ये इसमें चेक करते हैं 7 से 8 8 से, तो यहाँ से क्या हुआ? मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस ऑफ 1, 8 से मल्टीप्लाई बाई 2 16 प्लस ऑफ 2 18, आपके पास मल्टीप्लाई 3 आपके पास प्लस 3। ठीक है, आगे फिर से है मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 4, तो 232 आपके पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कैलाश वॉक 3 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट, यहाँ से ईस्ट की तरफ गया, कितना? 3 किलोमीटर। ठीक है, देन आ गया आपके पास टर्न साउथ एंड वॉक 4। ठीक है, अगेन टर्न टू वेस्ट एंड वॉक 6, वेस्ट की तरफ जाएगा और 6। हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्ट्रेट पॉइंट। अगर बात करता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक, तो अगर ये 3 था तो ये भी 3 था, तो ये बेस कितना आ गया आपके पास? 3, परपेंडिकुलर 4, तो 3 और 4 का कितना बनेगा? 25, 25 का क्या बनेगा? 5। आंसर इज बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इंडिकेट द बेस्ट रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया, हरियाणा एंड वर्ल्ड। तो सबसे ऊपर क्या आएगा? वर्ल्ड, फिर आएगा इंडिया, फिर आएगा हरियाणा। तो आपके पास डी ऑप्शन यहाँ पे परफेक्ट इसका आंसर बनेगा। कौन सा बनेगा? डी ऑप्शन। चलिए, होपफुली बात यहाँ तक अच्छे से क्लियर है। तो जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गाइस।
हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका ज्ञानम के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके वीकली मॉक टेस्ट का क्वांट के पार्ट का सॉल्यूशन। मॉक नंबर है आपका 95। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर है। क्या बोला गया है? ए ट्रेन इज 216 मीटर लॉन्ग एंड इट क्रॉस ए प्लेटफॉर्म इन 19 सेकेंड। एक प्लेटफॉर्म को 19 सेकेंड में क्रॉस करती है विद द स्पीड ऑफ 21 मीटर पर सेकेंड। ट्रेन की स्पीड भी है हमारे पास 21 मीटर पर सेकेंड। If some 21 meter long boxes are added in train and it cross the same platform, then it take 26 seconds. 26 second लगे हैं उसको to cross the platform with the same speed. How many boxes were added to the train? देखो अगर ध्यान से समझो ना तो क्वेश्चन विदाउट पेन पेपर सोल्व करने वाला ही क्वेश्चन है आपका। देखो पहले उसको कितना टाइम लगा था 19 सेकंड, अब कितना लगा है 26 सेकंड, मतलब 7 सेकंड उसको एक्स्ट्रा लगे हैं। ठीक है, क्यों एक्स्ट्रा लगे? क्योंकि अब उसमें कुछ बॉक्सेस ऐड किए। कितने बॉक्सेस ऐड किए गए थे हमें वो बताने हैं। देखो ट्रेन की स्पीड कितनी है 21 मीटर पर सेकंड, मतलब एक सेकंड में उसने 21 मीटर का डिस्टेंस कवर किया होगा। और एक बॉक्स की लेंथ भी कितनी है 21 मीटर है, तो मतलब 7 सेकंड में उसने 7 बॉक्सों को किया होगा। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आपको सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट को पढ़ना और समझना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? रवि इज नाउ 4 years older than ईमा एंड हाफ ऑफ दैट ऑफ ओल्डर देन ईशू। इफ इन 2 years रवि विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज ईमा, देन इन 2 years व्हाट वुड बी द रवि एज मल्टीप्लाइड बाय ईशू एज। तो उन दोनों की एज का जो प्रोडक्ट है वो कितना होगा वो हमें बताना है। ठीक है, देखो 3 लोग हैं, रवि, ईमा और ईशू। ठीक है, अगर हम ईमा की एज को x मान लें, एज कितनी हो जाएगी x+4 हो जाएगी। और इसकी जो एज का बताया गया है वो उससे हाफ, मतलब 4 से हाफ कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इन 2 years 2 साल के बाद जो रवि की एज है वो कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। और अगले 2 साल बाद मतलब ईमा की एज कितनी हो जाएगी x+5 बता। तो x+6 इक्वल x+4। x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास 2 आ। ठीक है, x की वैल्यू आपके पास यहां से क्या आ जाएगी। ठीक है, इसकी एज कितनी है 6, इसकी एज कितनी है 2, इसकी एज कितनी है? पूछा रवि और ईशु की एज की 2 साल के बाद मल्टीप्लाई। 6 + 2 8, 4 + 2 6, तो 48 आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? ए सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू 8400 रुपीज इन 3 years एंड 12,000 आफ्टर 6 years। 8400 रुपए से 12,000 रुपए हो गए और ये कितने साल में? 3 साल में। ठीक है, द रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें बताना है। देखो इन 3 साल में प्रिंसिपल सेम था, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम था, इंक्रीज क्या हुआ है? सिर्फ इंटरेस्ट इंक्रीज। तो देखो 3 साल में उसको कितना इंटरेस्ट मिला? 3 साल में उसको रुपए 1600 यहां से और 2000 यहां से 3600, तो मतलब एक साल में इंटरेस्ट 1200 रुपए। एक साल में कितना इंटरेस्ट मिला था उसको? 1200। ठीक है, और पहले 3 साल में भी तो उसको 3600 रुपए का इंटरेस्ट ही तो मिला होगा। अगर मैं 8400 से 3600 माइनस कर दूं तो मेरे पास प्रिंसिपल आ जाएगा। 14 - 6 8, तो ये कितना हो जाएगा 4800। और 1200 4800 का 1/4 है, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 25%। ऑप्शन ए आपका इसका राइट आंसर। क्लियर होगा ये? चलिए बढ़ते हैं उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? ए एंड बी एंटर इनटू ए पार्टनरशिप बाय इन्वेस्टिंग सम अमाउंट। द इन्वेस्टमेंट ऑफ ए इज ट्वाइस द इन्वेस्टमेंट ऑफ बी। जो ए की इन्वेस्टमेंट है वो बी से ट्वाइस है। एंड अनदर पर्सन सी joined them after 4 months. At the end of year, the profit share of A and C is equal. Then find the profit share of B in what percent more than percent of the profit of C. क्या कह रहे हैं कि 3 लोग हैं A, B, C। 3 लोग हैं A, B और C। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि A ने B से डबल पैसा लगाया था। अगर इसने X लगाया तो इसने 2X लगाया। ठीक है, अगर इसने x लगाया है तो a का कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। उसके बाद 4 महीने बाद c आता है और c का कुछ अमाउंट का रिलेशन नहीं दिया, लेट से y है, और ये 8 महीने के लिए पैसा लगा रहा है। इसका पैसा 12 महीने के लिए और इसका पैसा भी 12 महीने। ठीक है, आई होप ये बात क्लियर होगी।
में कोई डाउट कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो ये कितना होगा देखो 24x इज इक्वल टू 8y, क्योंकि दोनों इक्वल दिए गए थे। तो यहां से अगर x और y का रेशियो कैलकुलेट करें तो 1, ठीक है 1 रेशियो, या इसको अगर हम x की फॉर्म x y की फॉर्म में ही रख लें, ये 3x इज इक्वल टू, ठीक है। अब उसने पूछा था कि b का जो प्रॉफिट का शेयर है, ठीक है, अगर b के प्रॉफिट शेयर की बात करें हम तो कितना है 12x है, ठीक है। अब वो हमसे पूछा गया, देखो y की वैल्यू कितनी है 3x इंटू 8 के रिस्पेक्ट में पूछा गया कितने परसेंट, x x कैंसिल, ये 24 को 2 पे डिवाइड करेगा, 2 इसको 50 पे कर देगा, तो ऑप्शन ए 50% इसको हमारा राइट आंसर होगा। आई होप ये क्लियर होगा सब बच्चों को, इसमें कोई डाउट कोई कंफ्यूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए सर्टेन प्रोडक्ट सी इज मेड ऑफ 2 ए एंड बी इन द प्रोपोर्शन 2:5, मतलब एक प्रोडक्ट है जो दो अलग अलग इंग्रेडिएंट से मिलाकर बनाया गया है, ए और बी से, जिनका रेशियो कितना है 2:5 है। द प्राइस ऑफ ए इज 3 टाइम्स द प्राइस ऑफ बी, जो ए का प्राइस है वो बी के प्राइस से 3 गुना है। द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ सी वॉज 5.2 रुपीज पर केजी, और जो सी की कॉस्ट है वो 5 रुपए 20 पैसे है, इंक्लूडिंग लेबर चार्जेस 80 पैसा पर केजी, और जो लेबर चार्जेस है वो 80 पैसे के हिसाब से है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ बी, तो जो बी उसमें ऐड किया गया था उसकी कॉस्ट हमें बतानी, ठीक है। आई होप स्टेटमेंट तो सबको क्लियर होगी, ठीक है। और बी और ए की कॉस्ट में एक रिलेशन दिया गया था कि वो 3 टाइम्स है। अगर बी की कॉस्ट हम मान लें तो ए की कॉस्ट आपकी कितनी 3x हो जाएगी, ए की कॉस्ट आपकी कितनी हो जाएगी 3x हो जाएगी, और इसका रेशियो कितना था 2 रेशियो, तो 2 इंटू 3x प्लस x 5, टोटल क्वांटिटी कितनी होगी आपके पास 5 होगी। और अगर मैं 5 रुपए 20 पैसे में 80 पैसे माइनस कर दूं तो मेरे पास 4 रुपए 40 पैसे आ जाएंगे, जो कि एग्जैक्ट को, ठीक है। ये कितना हो जाएगा देखो 7x इक्वल टू 440 डिवाइड बाय 100 इंटू 5, तो 0 कैंसिल, इसको 4 पे करेगा 20, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, ठीक है। तो 2 रुपए तो हमारे पास वो कीमत आ जाएगी, सॉरी हम गड़बड़ कर ऑप्शन 2 नहीं, सॉरी ये 5 + 2 7 था ना, डिवाइड में 7, ये डिवाइड में 7 हमारा कर लेते, डिवाइड में कितना होगा 5 + 2 7, 7x इक्वल टू 4.427, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 0.40 के हिसाब से 2.80, 5 से डिवाइड कर दिया था हमने 7 से। क्या कह रहा है, इन ए लाइब्रेरी 30% ऑफ बुक्स आर इन हिस्ट्री, एक लाइब्रेरी में जो 30% बुक्स है वो हिस्ट्री की है, 50% ऑफ द रिमेनिंग, मतलब जो बची हुई है उसका 50%, एंड 40% ऑफ द रिमेनिंग इन जर्मन, द रिमेनिंग 4200 बुक्स आर इन रीजनल लैंग्वेज, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ द बुक्स इन द लाइब्रेरी, टोटल मान लो x, ठीक है। तो 30% अगर आपके पास हिस्ट्री की है तो बाकी कितनी बची 70%, फिर 50% इंग्लिश की है तो बाकी और कितनी बची 50%, फिर 40% अगर आपके पास जर्मन है तो अब कितनी बची 60%, और यही आपका 4200 की 7 इंटू 6 42 से 4200 पूरा का पूरा कैंसिल, 5 से इसको डिवाइड करोगे 2 पे आ 20,000 आपका इसका राइट आंसर। आई होप क्लियर होगा ये सबको। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देयर आर 3 कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर्स एंड 3 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर, 3 लगातार ओड नंबर है और 3 लगातार इवन नंबर है। द स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज 9 मोर देन द लार्जेस्ट ओड नंबर। यहां से अब एक इवन और एक ओड नंबर का रिलेशन दिया, द स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज 9 मोर देन द लार्जेस्ट ओड नंबर इफ द स्क्वायर ऑफ average of all the 3 given odd number is a 507 less than the square of the average of 3 even number। तो अब जो 3 इवन नंबर है और उनका जो एवरेज है उसका स्क्वायर और ओड नंबर के एवरेज का स्क्वायर, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 507 है, बट इज द स्मॉलेस्ट ओड नंबर, तो स्मॉलेस्ट ओड नंबर हमें बता, ऑप्शन आपको ये दे रखा। देखो इसमें अब हमें कुछ वेरिएबल सेलेक्ट करने पड़ेंगे। जब भी अगर आपके पास 3 नंबर की बात हो तो 3 नंबर हम कैसे सेलेक्ट करते हैं,
3 इवन नंबर की बात की गई है और 3 ओड नंबर की बात की गई। तो अपने को 3 इवन नंबर लेने हैं और 3 ओड नंबर लेने हैं। अगर मैं ओड नंबर की बात करूं, देखो अगर एक एक्स है, बाद वाला एक्स से पहले वाला, और जब इवन लेंगे तो इवन के वाई वेरिएबल के साथ ले लो। ये वाई है, तो जब भी अगर आपको 3 नंबर लेट करने होंगे या कुछ इस तरीके से, ठीक है, हमेशा हम कुछ इस तरीके से लेट, 5 है तो भी इस तरीके से लेट करेंगे, और 4 है तो फिर आपका एक अगर y प्लस 2 है तो इधर से y माइनस, फिर y प्लस 4, y माइनस। जब 4 नंबर होते हैं तो इस तरीके से लेट कर, ठीक है, इसका ध्यान रखें। आई होप यहां तक की बात क्लियर होगी सब बच्चों को। 3 नंबर हमने लेट कर लिए हैं, 3 ओड और 3 नंबर। द स्मॉलेस्ट इवन नंबर, तो जो स्मॉलेस्ट इवन नंबर है वो कितना है हमारा y माइनस। तो स्मॉलेस्ट इवन नंबर कितना है y माइनस, y माइनस। The smallest even number is 9 more than the largest odd number. Largest odd number कितना है x प्लस। तो जो स्मॉलेस्ट इवन नंबर है ये 9 ज्यादा है। अगर मैं चाहता हूं कि दोनों साइड बैलेंस बना रहे, ठीक है, आई होप ये बात क्लियर होगी। तो y माइनस एक्स, -2 उधर जाकर प्लस का हो जाएगा तो ये 13 आ गया, तो मतलब y माइनस एक्स मेरा कितना आ गया 13 आ गया। उसके बाद क्या कह रहा है, इफ द एवरेज ऑफ ऑल द 3 ओड नंबर इज अ 507 लेस, मतलब जो ओड नंबर का एवरेज है उसका जो स्केयर है वो कम है, ठीक है। तो इवन नंबर हमारे पास कितने थे y, इनका एवरेज कितना होगा y और ओड का कितना होगा x, इनके बीच का जो स्केयर है कितना है 5। तब आप यहां से कह सकते हो 5 प्लस और y माइनस 507 है, और y माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आपके पास 30, y माइनस एक्स है। आई होप यहां तक की बात क्लियर होगी। अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं, पहले 3 पे करेगा, ठीक है, 39, फिर 117, फिर 9 पे कर। अब मेरे पास देखो दो चीजें आ गई हैं कि y प्लस एक्स इक्वल टू 39 है और y माइनस एक्स मेरे पास 13 है, ठीक है। और स्मॉलेस्ट ओड नंबर मतलब अपने को x की वैल्यू निकाल, तो ये चेंज हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये x की वैल्यू निकालनी है ना, y कैंसिल होगा, y कैंसिल, तो 2x इज इक्वल टू 26, y की वैल्यू कितनी आपके पास 13 हो, x की वैल्यू, x की वैल्यू अगर 13 है तो ये कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो इसको चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए ट्रेन मूव्स विद ए स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर फॉर 12 मिनट, पहले 12 मिनट के लिए वो 30 की स्पीड से जा रही है, एंड फॉर नेक्स्ट 8 मिनट एट ए स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन। एवरेज स्पीड क्या होगी, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 12 मिनट में 12/60 प्लस 45 इन 8/6, ये तो टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना हो जाएगा 12/60/60, टाइम भी तो आवर्स में लेना पड़ेगा। तो सॉल्व करेंगे, ये 2 पे से डिवाइड करेंगे, इसको 6, 3 से डिवाइड करेंगे 3 और 4 को डिवाइड करेंगे 2 पर, तो 6 आ गया। ये एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 60, तो 20/60 मतलब 1/3 बन, तो 3 ऊपर चला जाए, 6 + 6 12 इंटू 36। ऑप्शन बी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंटेनर कंटेन्स 40 लीटर ऑफ मिल्क, फ्रॉम दिस कंटेनर 4 लीटर ऑफ मिल्क वॉज टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड बाय वाटर, दिस प्रोसेस वॉज रिपीटेड फर्दर 2 टाइम्स। 4 लीटर निकाला गया है 40 में से, मतलब 1/10 निकाल लिया। अगर 40 था, 40 में से देखो 1/10 निकालिए तो बचा कितना है 9/10, और यही प्रोसेस फिर 2 बार किया गया है, इंटू 0 से 0 कैंसिल, 9 का क्यूब 729 इंटू 4 डिवाइड बाय 100, 7 चौक 28 मतलब 29, लास्ट में 0.6 भी आएगा,
ठीक है, क्योंकि 4 × 9 36 है और 28 से नंबर बड़ा होगा, तो ऑप्शन डी आपका इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हाट रेशियो मस्ट ए ग्रोसर मिक्स 2 वेराइटीज ऑफ शुगर? 50 रुपीज पर केजी, एक की कीमत 50 है, दूसरे की कीमत, ठीक है, और ने इसको सेल किया है 10% प्रॉफिट। कैलकुलेट, पहले 5 पे काटेगा और फिर 5 पे काटेगा, 55 एलिगेशन लगा देंगे तो इधर भी 5 होगा, इधर भी 5 होगा, तो मतलब 1 रेशो 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, A can do a certain work in the same time in which B and C together do. If A and B together could do it in 10 days, C in 50 days. अब वो क्या कह रहे हैं कि A और B किसी काम को मिलकर 10 दिन में करते हैं, C अकेला 50 दिन में, B अकेला उस काम। सबसे पहले उसने क्या बोला था कि A can do a certain work in the same time in B and C together. बी और सी उस काम को जितने टाइम में करते हैं, अकेला ए उतना टाइम लेता है। उसके बाद हमारे पास ए और बी का दे रखा था, ठीक है, और ए और बी का कितना दे रखा था हमारे पास, अगर हम बात करें यहां से कि दोनों मिलकर 10 दिन में और वो अकेला कितने दिन में करता है, 50 दिन, ठीक है। अगर मैं ए और बी की बात करूं, ये किसी वर्क को 10 डेज में करते हैं, तो इनका जो 1 डे वर्क है वो 1/10, और सी किसी वर्क को 50 डेज में करता है, इसका जो वर्क है 1/50 है, 1/50। अगर हम इन तीनों का 1 डे वर्क कैलकुलेट करें, या आप वैसे भी कैल्शियम ए प्लस बी काम को ये 5 और ये 1, ए प्लस सी काम को 50/6, तब 25/3 डे, और एक दिन में ये कितना काम कर रहे हैं, 3/20 वर्क एक। के बाद वो क्या कह रहे हैं कि जो ए का एक दिन का काम है वो किसके बराबर है, बी और सी के एक दिन। अब ये ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम है, ठीक है। तो अब ए का जो काम है वो बी प्लस सी के काम के बराबर है, ठीक है। तो यहां से अगर मुझे ए का काम निकाल, तो मैं बी प्लस सी का अगर यहां पुट कर दूं, कि मैं कह सकता हूं कि ए का डबल काम करें तो एक दिन का काम ये है, अकेले ए का एक दिन का काम कितना, 3/50। ए का अकेले एक दिन का काम कितना, 50। ए प्लस बी का एक दिन का काम कितना था, 1/50, का कितना है, 3/50, हो जाएगा 5 - 2/50। मतलब बी अकेला कितने दिन में करेगा, 25 डेज। From the salary of an officer, 10% is deducted as house rent, 15% the rest he spends on children education, and 10% of the balance he spends on cloth. अगर इनिशियल एक्स है तो 10% उसने खर्च कर दिया, बचा कितना, 90, फिर 15 खर्च किया, बचा कितना, 80, और फिर 10% दोबारा से खर्च किया, बचा कितना, 90, और यही उसने जो बचा हुआ है वो 1377। सॉल्व करेंगे, 0 से 0, 5 से डिवाइड करेंगे 17 और ये 20, 9 से इसको डिवाइड करें, पहले 1 पे करेगा, ठीक है, कितना बचेगा 4, फिर 5 पे करेगा, ठीक है, और फिर 3 पे, और 17 × 9 1000 आपका राइट। चलिए, ये लास्ट क्वेश्चन था आपका। आई होप ये सभी क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर होंगे। अगर किसी क्वेश्चन में किसी बच्चे का डाउट कंफ्यूजन तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जो भी आपका डाउट होगा। Hello everybody, welcome to the English section by Gyanam. I am Piyush Sardana, your buddy English language teacher. There we go with the answers of the mock. पहला है sentence improvement. Each of the students pay their tuition fees at the beginning. Each से start हुआ है, each से start हुआ मतलब singular है, तो each of the students हो जाएगा और singular के लिए pays हो जाएगा। It is essential to thoroughly clean. To के साथ verb की first form, लेकिन clean is a verb तो thoroughly आएगा, तो clean thoroughly ये बचता है।
तो क्लीन थॉरो तो है नहीं, और क्लीन्ड तो बिल्कुल नहीं आएगा, तो इट शुड बी टू क्लीन थॉरली। टोल्ड हिम क्लियरली दैट ही हैडंट ऑट टू डू दैट टू मी, और हैड नॉट के साथ ऑट टू कोई काम नहीं, वो खुद ही हेल्पिंग वर्ब है। ऑट नॉट टू हैव डन, यस, ऑट नॉट के साथ टू डू आना चाहिए, ऑट नॉट फिर हैज नहीं आएगा, तो वो तो वैसे ही गलत है। आंसर इज ए। When a man has to give evidence, he must have a clean breast. A clean breast, he must have a clean breast का मतलब क्या हुआ? Idiom है ये। इसका मतलब होता है आपके पास इस चीज की प्रॉपर क्या बोलते हैं, अब यहां पर तो मेक हो जाएगा, बट ही मस्ट मेक अ क्लीन ब्रेस्ट, तो ये वैसे इसका मतलब क्या होता है? प्रॉपर थियोरेटिकल थिंग आपके सामने होनी चाहिए। इज अ प्लेन सिंपल एंड सिंसियर मैन, ही विल ऑलवेज कॉल अ स्पेड अ स्पेड। कॉल अ स्पेड का मतलब होता है आप कुछ प्लेन टर्म्स में बात करते हैं, आप कुछ कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स नहीं देते हैं, आप रुकते हैं, अपने आप को रोकते हैं। इज अ कट अबव टीचर्स इन द स्कूल। कट अबव का मतलब है बाकियों से बेहतर है वो, तो कट अबव के आपके पास चार ऑप्शन, इंफीरियर, नो, वर्दी नहीं, सुपीरियर, हाँ ऊपर है। द यंग बिजनेस एग्जीक्यूटिव वॉज वेरी परस्पिकेशियस। परस्पिकेशियस का मतलब क्या हो जाएगा? वो बोल रहा है ऑपोजिट बताना है, तो ऑपोजिट इसका क्या हो जाएगा? somebody who is not reliable, बिकॉज इसका मतलब है बहुत ज्यादा रिलायबल है, इस पे काफी भरोसा जता सकते हैं हम। स्पीकर मेड सम वेरी कोगेंट रिमार्क्स। अभी स्पीकर ने ना बहुत कोगेंट रिमार्क्स बोले थे, मतलब कि बहुत ज्यादा, मतलब बांध के रखने वाले। उसको ऑपोजिट क्या हो गया? समथिंग विच इज अनकन्विंसिंग। ही फेल्ट डैश सो ही स्टेड एट होम। बीमार लग रहा था, सिक। द डॉक्टर सेड दैट द वुंड लुक्ड वेरी बैड। वेरी के साथ फर्स्ट डिग्री चल जाएगी, तो वो बैड हो जाएगा। शी डैश हर डॉटर टू स्कूल बिफोर शी गोज टू वर्क। शी टेक्स हर डॉटर टू स्कूल, वो लेकर जाती है डॉटर को वहां जाने से पहले। करेक्ट सिनोनिम बता। एटर्नल का मतलब होता है जो जग जाहिर है, जो रहेगा ही रहेगा, व्हिच मीन्स समथिंग व्हिच इज एवरलास्टिंग। थैंक यू।